Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. In today's lecture, we will study exercise from chapter number 3 biotechnology. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, उनके हेड पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं. द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स. The next statement is why may be the objective of genetic modifications of plants. Sorry, what may be the objective of genetic modifications of plants? The correct option is all of these. तो क्या हैं ये सारे objectives? Production of disease resistant plants, improvement in nutritional quality of plants and the production of herbicide resistant plants. तो ये तीनों options जो हैं ये तीनों ही correct हैं, ये तीनों ही objective होते हैं genetic modification के. Next statement is plasmids and attached foreign gene with it are collectively called recombinant DNA. The next statement is the organisms whose cells and plasmids are usually used in genetic engineering are bacteria. The next statement is sections of DNA serving as codes for developing characters in an organism are called genes. The next statement is which of the following is not a biotechnology product, and the answer is quinine. The next statement is how do genetic engineers get insulin for diabetic patients, and the answer is इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया. जब इंसुलिन जीन जो है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट की जाती है, बैक्टीरिया डिवाइड करता है, तो इंसुलिन जो है जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं वो गेन करते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. The next statement is biotechnological method for the production of animal organs is cloning. तो क्लोनिंग ही वो प्रोसेस है जिसकी मदद से एनिमल ऑर्गन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो आर्टिफिशली करवाई जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए. The next statement is why do genetic engineers use bacteria in genetic engineering? And the answer is bacteria डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज. तो यही रीज़न है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर्स जो हैं वो बैक्टीरिया को चूज़ करते हैं. द लास्ट स्टेटमेंट इज अ जीन इज इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए विद द रेलेवेंट स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम बी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ हार्मोन विच इज़ रिलेटेड टू स्टिमुलेटिंग ग्रोथ. द नेक्स्ट इज बीटा एंडोर्फिन विच इज़ रिलेटेड टू painkiller. The third is vaccine which is related to immunity against diseases. The fourth one is interferon which is related to viral infections. And the last is insulin which is relevant to diabetes. तो ये थे कॉलम मैचिंग. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज what is biotechnology, and the answer is the technology in which living things are used in different ways to help and benefit human beings is called biotechnology. और ये आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही इसका आंसर जो है मिल जाएगा, आपने मार्क कर लेना है बुक में. The next question is what is genetic testing, and the answer is genetic testing is one of the latest biotechnological techniques used for genetic diagnosis of inherited disease. It involves the direct examination of DNA molecule. It is also used to determine a child's paternity or a person's ancestry. जेनेटिक टेस्टिंग का टॉपिक भी आपको इस चैप्टर के लास्ट पे मिल जाएगा, तो आपने इसका आंसर भी मार्क कर लेना है. The next question is name at least 2 life-saving products of biotechnology. तो 2 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं बायोटेक्नोलॉजी की? फर्स्ट इज़ इंसुलिन एंड द सेकंड इज़ वैक्सीन्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब जीन थेरेपी. द आंसर इज़ जीन थेरेपी इज़ एन एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज़ लाइक कैंसर एंड एड्स. तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, इन सब के आंसर्स जो हैं आपने बुक में मार्क कर लेने हैं. नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे हम इस चैप्टर के. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.4 हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट द जीन ऑफ अ डिज़ायरेबल प्रोटीन इनटू अ बैक्टीरियम. तो आंसर के हेड पॉइंट्स में रीड करूँगी. स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन. पहले जीन की आइडेंटिफिकेशन होगी, देन उसकी आइसोलेशन होगी. देन सेकंड स्टेप इज़ टू कट दी प्लाज्मिड डीएनए. तो डीएनए प्लाज्मिड को बैक्टीरियम की बॉडी से कट किया जाएगा.
द थर्ड स्टेप इज़ अटैचिंग आइसोलेटेड जीन। देन जो हमने जीन आइसोलेट की हुई होगी उसको हम अटैच करेंगे किसके साथ, प्लाज्मिड डीएनए के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज़ इंसर्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो जीन और प्लाज्मिड डीएनए ने कंबाइन करके जो नया प्रोडक्ट बनाया है, जो नई फॉर्म बनाई है, उसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसको हम इंसर्ट करेंगे वापस बैक्टीरिया की बॉडी में। तो ये स्टूडेंट्स हेड पॉइंट्स थे, आप लोगों ने हेड पॉइंट्स भी नोट कर लेने हैं, और ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपने बुक पे मार्क कर लेना है। सारा इंटरनल कंटेंट जो है वो बुक में से ही लिया गया है। The next question is 3.5. Give diagrammatic explanation of biotechnological process for the preparation of insulin. तो आंसर में स्टूडेंट्स डायग्राम जो है आपकी बुक पे मौजूद है, आप लोगों ने इस डायग्राम को अच्छे से लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। The next question is 3.6. Describe the application of biotechnology in agriculture. तो आंसर में स्टूडेंट्स हेड पॉइंट्स डिस्कस करूँगी मैं। वीट एंड पेस्ट रेजिस्टिंग प्लांट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए हैं बायोटेक्नोलॉजी ने जो कि वीट और पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कल्टीवेशन। तो हम लोग ऐसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन करेंगे जो कि ज़्यादा सेफ़ होंगी ह्यूमन यूज़ के लिए। तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, कॉर्न, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड एक्सट्रीम सॉल्ट्स। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन से प्रिवेंशन के लिए जो हैं वो स्पेशल प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में। तो हेड पॉइंट्स भी आपने नोट कर लेने हैं और इंटरनल कंटेंट भी आपने इंटरनल कंटेंट जो है वो बुक पे आपने मार्क कर लेना है। The next question is 3.7. What is genetic modification? How is it helpful in increasing the amount of different nutrients in food? तो आंसर में स्टूडेंट सबसे पहले हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन देखनी है। द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने फर्स्ट मार्क करनी है। देन हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, जब हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाएंगे जिनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर बनाई जा सके जीन्स को यूज़ करते हुए। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, जो जीन्स की वजह से मॉडिफाई हो रहा है उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देन स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन जो कि हाई यील्ड्स किसकी प्रोड्यूस करवा सके, मिल्क की और मीट की। देन ऐसे वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स की प्रोडक्शन को बेहतर करवाने के लिए जो कि इंक्रीज़ करें अपना शेल्फ़ लाइफ और बेहतर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ज़रिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3.8. डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ में देखेंगे हम स्टूडेंट्स के बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या रोल प्ले करती है। डिफरेंट डिजीज़ जिनका पहले कोई इलाज कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था वो भी अब ट्रीट की जा सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। उसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन की प्रोडक्शन रूट कॉज को ट्रीट करते हुए किसी डिज़ीज़ की, और प्रिवेंशंस को माइंड पे रखते हुए और जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करते हुए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है हेल्थ में। तो जो प्रोडक्ट्स जो हैं अभी तक बन चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो हैं इंसुलिन, वैक्सीन्स, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन एंड इंटरफेरोन। तो इनमें कुछ ड्रग्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है वो बुक का है, आप लोगों ने बुक पे ये कंटेंट जो है वो मार्क कर लेना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट में देखेंगे तो इन्वायरमेंट की भी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सीवेज वाटर, इन सब को भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है। और उसके अलावा हम डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं एज बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइज़र्स, बायोसेंसर्स। तो ये सब किस वजह से है, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की वजह से। तो इन्वायरमेंट का भी आप लोगों ने पूरा टॉपिक जो है वो लर्न करना है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है हेल्थ और इन्वायरमेंट। तो इंटरनल कंटेंट जो है सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपकी बुक से लिया गया है। आपने अपनी बुक पे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं मार्क करने हैं, इन्हें लर्न करना है। उसके अलावा आपने टॉपिक जो है वो थॉरोली स्टडी करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है असेसमेंट में या पेपर में आ सकती है।
तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।